Hey guys, so question for today is which of the following is put into the anaerobic sludge digesters for further sewage treatment? Activated sludge, primary sludge, floating debris, or the effluents of the primary treatment. To solve this question, we would first learn, or we would first, I'll let you know about the sewage treatment. So sewage treatment is performed in two ways. Sewage treatment के दो स्टेप्स होते हैं. पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन परफॉर्म किया जाता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. यहाँ पे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करके उनको सेडिमेंट करके प्राइमरी इफ्लुएंट बनाया जाता है. ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट बनता है जब इसको फिल्टर कर देते हैं और सेडिमेंट कर देते हैं तो प्राइमरी इफ्लुएंट अलग हो जाता है और जो प्राइमरी स्लज है वो अलग हो जाता है. प्राइमरी स्लज में मतलब इट बेसिकली कंटेन्स द डर्ट. ठीक है, तो प्राइमरी इफ्लुएंट को फॉर द फर्दर प्रोसेस द प्राइमरी इफ्लुएंट इज यूज्ड इन द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट. नाउ वी विल सी कि सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होगा. ठीक है, तो जो आई firstly also note that the primary treatment is also called as the physical treatment whereas the secondary treatment is also called as the biological treatment. ठीक है, biological treatment बोलते हैं secondary treatment को. Now in the secondary treatment, as I told you before कि secondary treatment में we use primary effluent. तो जो primary effluent होता है in the secondary treatment we take the aeration tanks. The primary effluent is taken down in the aeration tanks. In aeration tanks में the air is pumped constantly. यहाँ पे air को constantly pump किया जाता है for aeration. और उसके बाद by this process जो वहाँ पे growth होती है, जो बैक्टीरिया की जो growth होती है, the growth of bacteria and other microbe enhance होती है. ठीक है, the growth of bacteria and microbes enhances. ठीक है, जो aerobic microbes होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं या एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है. ओके, बाय द एरेशन. नाउ दिस to this aeration the bacteria, suppose this is the bacteria, this bacteria gets surrounded by the fungal filament. ठीक है, this mesh like structure of bacteria which is surrounded by the fungal filament, this mesh like structure is called as, what is this called? It is called as flocks. इसको हम लोग flocks बोलते हैं. This is called as flocks. ठीक है, what happens since we now know that these flocks have aerobic microbes. ठीक है, तो aerobic है मतलब they'll use oxygen and they'll use the organic matter. तो ये जितना organic matter consume करेंगे while growing, मतलब they consume some amount of organic matter while growing. ठीक है, the organic matter consumed by flocks. ठीक है, जो they consume the organic matter in the primary effluent. तो once they consume the organic matter present in the flocks, उसकी वजह से क्या होगा, the BOD in the flocks, BOD stands for the biological oxygen demand. This BOD gradually decreases once the organic matter inside the primary effluent gets consumed. ठीक है, तो what is BOD? BOD is the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. मतलब कि 1 लीटर in 1 liter of water जो बैक्टीरिया हैं वो जितना organic matter consume करेंगे that will be the BOD of that portion of water. ठीक है, तो BOD क्या होता है? BOD बेसिकली बीओडी का बेसिक मतलब ये होता है जितनी ज्यादा बीओडी होती है, जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, दैट मीन्स द मोर पॉल्यूटिंग इज द वाटर. मतलब वाटर में उतना ज्यादा पॉल्यूशन है या फिर उतनी ज्यादा डर्ट प्रेजेंट है, या फिर ऑल्सो वी कैन से कि उतना ही ज्यादा वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जितनी ज्यादा बीओडी होगी. अगर बीओडी कम है तो वाटर क्या होता है, वाटर इज लेस पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन कम है वाटर में. ओके, नाउ विल कंटिन्यू विद आवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसीजर. जब BOD सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है, वंस द BOD इज डिक्रीज देन दिस इफ्लुएंट इज पास्ड इन द सेटलिंग
टैंक, ठीक है, इसको सेटलिंग टैंक में पास ऑन किया जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इन दीज सेटलिंग टैंक्स, इन सेटलिंग टैंक्स में जो फ्लॉक्स होते हैं ये फ्लॉक्स को सेडिमेंट किया जाता है, ठीक है, द फ्लॉक्स आर सेडिमेंटेड इन दीज सेटलिंग टैंक्स। और उसके बाद वंस द फ्लॉक्स हैव बीन सेडिमेंटेड वी गेट द सेकेंडरी इफ्लुएंट, हमें यहाँ से सेकेंडरी इफ्लुएंट मिलता है एंड दिस सेकेंडरी इफ्लुएंट इज प्योर एंड नाउ वी कैन ट्रांसफर दिस और रिलीज दिस सेकेंडरी इफ्लुएंट इन द वाटर बॉडीज, ठीक है। लेकिन अभी एक थोड़ा सा प्रोसीजर बचा है यहाँ पे। जो फ्लॉक्स होते हैं दीज फ्लॉक्स, ये जो फ्लॉक्स होता है, जो सेडिमेंट होता है, दिस फॉर्म्स द एक्टिवेटेड स्लज, ये यहाँ पर क्या बनाता है, दिस फॉर्म्स द एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट एज इनोक्यूलम यहाँ एक्टिवेटेड स्लज, सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज बीन poured इनटू द एरेशन टैंक्स, ठीक है, एरेशन टैंक्स में डालते हैं यहाँ से हम थोड़ा सा एज इनोक्यूलम, थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज को इन द एरेशन टैंक्स भी ट्रांसफर, ठीक है। उससे क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द ग्रोथ ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे इनहेंस हो जाती है, ठीक है, इट हेल्प्स इन दैट, ठीक है। नाउ क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लॉक्स है वो ऑलरेडी एरोबिक माइक्रोब्स हैं, द बैक्टीरिया सराउंडेड बाय द फंगल फिलामेंट्स, तो जब हम थोड़ा सा इनोक्यूलम, थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज जब हम एरेशन टैंक्स में डालेंगे तो वहां पे ये प्रोसेस एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज होता है, क्योंकि इनोक्यूलम में तो थोड़ा सा ही जाता है, तो जो बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज होता है, द मेजर पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज इसको हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डालते हैं। इट इज poured इन द एनारोबिक। नाउ वी ऑल नो कि जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में, जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरियाज जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट द एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर्स डाइजेस्ट द एरोबिक बैक्टीरिया ऑफ द फ्लॉक्स। और उससे होता क्या है, उससे ड्यूरिंग डाइजेशन, व्हेन दे आर डाइजेस्टिंग, ड्यूरिंग डाइजेशन दे रिलीज गैसेस, ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन दे रिलीज गैसेस, ठीक है, गैसेस रिलीज होती हैं, गैसेस सच एज CH4, hydrogen, also carbon dioxide, and all these gases are collectively called as बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है एंड दिस बायोगैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इस बायोगैस से हमें काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो इसे इलेक्ट्रिसिटी या ऐसे फर्दर किसी यूज के लिए इस बायोगैस को यूज किया जा सकता है। ओके, सो नाउ after the whole explanation, after the whole procedure, we can get the answer from our question, which says our question was which of the following is being put into the anaerobic sludge digesters for further sewage treatment। तो anaerobic sludge digesters में हम लोग लिंक देखा था that we put activated sludge in the anaerobic digesters, जहाँ पे जो anaerobic बैक्टीरिया होते हैं वो aerobic बैक्टीरिया या फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ओके ओके, so I hope this was easy to understand and you understood। Okay, thank you।